Good morning, students. First of all, you are welcome to the new academic year. Obviously, you are going to have an amazing and full of creativity in this academic year. So, get ready for the best academic year yet. Wish you all the best. I am here to start first chapter of your English textbook. Title of the chapter is Abu Hassan's Tricks. Before watching this video, you are advised to read this chapter line by line carefully and make a list of hard words with their meanings in your notebook. Before starting this chapter, I would like to introduce you that there is a book named 1001 Nights. It is a collection of Middle Eastern folk tales compiled in Arabic language. And the first English edition of this book is known as Arabian Nights. There are many popular stories in the Arabian Nights. You all know very well that there are some main characters in the tales or stories, like in Motu and Patlu. Motu, Patlu, Inspector Chewingham, etc. are the main characters of that TV serial. And Doraemon and Nobita are the main characters of Doraemon. Similarly, the main characters of this book Arabian Nights are Aladdin, Sinbad, Princess Jasmine, Shahrazad, Harun al-Rashid, King Yunan, Ali Baba, etc. These characters are very popular among children all over the world. Now we try to know about some of the main characters of the book. The first one is Aladdin. Once Aladdin meets Princess Jasmine. She was the beautiful daughter of Sultan of Agarwah. Sultan means king. He meets at her exotic palace. Exotic means unusual or interesting because it comes from a different country or culture. हम वैसे चीज़ों को exotic कह सकते हैं जो हमारे लिए नया हो, इंटरेस्टिंग हो, जो किसी दूसरे कल्चर से बिलोंग करता हो. During his visit, Aladdin stumbles upon a magic oil lamp. Stumble means hitting one's feet against something when walking or running. चलते या दौड़ते समय ठोकर खाना. And when anyone hits or scrubs any magic oil lamps, a genie comes out. आप लोगों ने कहीं ना कहीं से अलादीन का चिराग कहानी अवश्य जानते होंगे. ये वही अलादीन है. What happens when Aladdin stumbles upon a magic oil lamp, a powerful, wisecracking, and larger than life genie comes out. Here, wisecracking means Hajir Jawabi. Okay, Hajir Jawabi. And larger than life means size of genie was larger than normal human being. The second character is Sinbad. Sinbad is a mariner and he is described as hailing from Baghdad. He was a sailor and he was coming from Baghdad through sea. In the course of 7 voyages throughout the East Sea, east of Africa and south of Asia. It means which sea it comes east of Africa and south of Asia? It is Arabian Sea. It is Arabian Sea. He was sailing in Arabian Sea. During his 7 voyages means long journey by sea or in space. Okay, so during his 7 voyages, where in the sea east of Africa and south of Asia. Which sea comes between east of Africa and south of Asia? It is Arabian Sea. Which sea? Arabian Sea. Okay. He faced magical realm. He faced magical realm means that very events in which magic occurs. Magical realm means the events in which magic occurs. Encountering monsters. Monsters means
monstrous means a large and a frightening imaginary creature. आप लोगों ने राक्षस को देखा होगा. दोज आर इमेजनरी क्रिएचर्स. फ्राइटनिंग होती है उसका चेहरा देखने में. नेक्स्ट very famous character is Ali Baba. You all know very well about Ali Baba. Ali Baba is a poor woodcutter. Okay, he was a poor woodcutter who discovers the secret of a thief's den. Thief's den, den means caves where thieves keep their things which they were stolen. Okay, Ali Baba has come to know all the secrets of thieves, their den, their way to enter into the den. And later on, the thieves learn this and try to kill Ali Baba. बाद में चोरों को ये पता चल जाता है कि अली बाबा ने ये सारा सेक्रेट जान चुका है, इसलिए वो चोर जो है वो अली बाबा को मारने की कोशिश करता है. बट अली बाबाज फेथफुल स्लेव गर्ल फॉल्स देयर प्लॉट्स. मीन्स अली बाबा का जो फेथफुल गर्ल्स होती है वो चोरों के प्लान को ख़त्म कर देती है. प्लान को मतलब अली बाबा को मारने नहीं देती. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज प्रिंस हुसैन. प्रिंस हुसैन, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द सुल्तान ऑफ द इंडीज. Once he travels to Bisnagar in India. Once he travels to Bisnagar in India and buys a magic teleporting tapestry. Teleporting, which can carry, which can transport anything very fastly. Okay, imaginary transporting way, which can carry, which can transport anyone, anything very fastly. Tapestry, tapestry means piece of cloths. Decorated piece of, means thick decorated piece of cloths. Okay, also known as magic carpet. Means magic teleporting tapestry को हम लोग क्या कह सकते हैं? मैजिक कारपेट. Okay, now we come to the main story of this chapter about Abu Hassan and his wife Nuzhat. Once there were Prince Harun al-Rashid and Princess Zubaydah in Baghdad. Both Abu Hassan and his wife Nuzhat were their favorite. Both Abu Hassan and his wife Nuzhat were favorite of Prince Harun al-Rashid and Princess Zubaydah. Abu Hassan was favorite of Harun al-Rashid, whereas Nuzhat was favorite of Princess Zubaydah. It was Abu Hassan's habit to invite his friends frequently to his house and entertain them lavishly. Lavishly, lavishly means open-heartedly, या कह सकते हैं exorbitantly. Exorbitantly means पूरा खुल के खर्च करता था. It was Abu Hassan's habit to invite his friends frequently to his house and entertain them lavishly. Abu Hassan का ये आदत था कि वो अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट करता था और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही मतलब खर्च करके लोग मतलब अपने दोस्तों को इंटरटेन करता था. Thus he spent all his money and इस तरीके से अबू हसन अपना सारा मनी क्या कर लिया? दोस्तों के पीछे खर्च कर लिया. नाउ अबू हसन हैड नो मनी टू ईट गुड फूड. नाउ अबू हसन हैड नो मनी टू ईट गुड फूड. नाउ सी द पिक्चर. व्हाट रविश हैव यू गिवन मी फॉर ब्रेकफास्ट? हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू ईट दिस? अ डॉग वोंट ईट इट. कांट यू मेक एनीथिंग बेटर? अबू हसन स्कॉल्ड हिज वाइफ, What rubbish have you given me for breakfast? कितना गंदा खाना ब्रेकफास्ट में तुम दी हो. How do you expect me to eat this? तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर ली कि मैं ये खाना खा सकता हूँ? A dog won't eat it. एक डॉग भी इसे नहीं खा सकता है.
कांट यू मेक एनीथिंग बेटर, क्या तुम कुछ और इससे अच्छा बेटर नहीं बना सकती हो? नाउ हिज वाइफ नुजत रिप्लाइड, इट इज़ द बेस्ट आई कैन डू डियर। ये जो है सबसे बेस्ट अच्छा है जो मैं कर सकती हूँ। देर इज़ नथिंग इन द हाउस टू मेक एनीथिंग बेटर विथ। अब घर में वैसा कुछ भी चीज़ नहीं बचा है जिससे कि मैं इससे बेटर बना पाऊँ। वी हैवेंट गॉट अ पेनी, अपने पास अब कुछ भी पैसा नहीं है। वी हैवेंट गॉट अ पेनी। नाउ अबू हसन, इट्स डिसग्रेस, हियर आई एम द प्रिंसेस फेवरेट एंड वी आर ऑलमोस्ट स्टार्विंग। ये बहुत ही डिसग्रेस, ये निराश करने वाली बात है कि मैं जो हूँ प्रिंस का फेवरेट हूँ, ओके, और मैं यहाँ और हम लोग जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट भूखे रहने की स्थिति में हैं। सेल आई गो एंड बेग समथिंग फ्रॉम द प्रिंस अगेन, ही आस्क्स टू हिज वाइफ, क्या मुझे अब जाना चाहिए प्रिंस के पास कुछ मांगने के लिए? His wife replied, the gold he gave us last time was enough for 10 years or more, but we have spent it all. हम लोगों ने सारे खर्च कर दिए। We can't go on like this. हम लोग इस तरह से वहाँ मांगने के लिए नहीं जा सकते। Will it be wise of us to ask the prince again for help? क्या ये अब बुद्धिमानी होगी कि हम दोबारा प्रिंस के पास हेल्प के लिए जाए? Squandering means waste in a reckless and foolish manner. Waste in reckless and foolish manner, especially the terms of money and time. Money or time. Squandering. We have been living happily and sharing our money with our friends. हम लोग बहुत हैप्पीली रह रहे थे और अपने मनी को, अपने पैसे को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर रहे थे। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम ब्रिंगिंग इन डजन्स एंड स्कोर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड इंटरटेनिंग देम। वी हैव बीन स्क्वेंडरिंग ऑल आवर मनी। दिस टाइम हिज वाइफ नुजत आस्क्स to her husband, squandering, we have been living happily and sharing our money with our friends. Abu Hassan confessing by itself. Then his wife Nuzat asks, nothing can stop you from bringing in dozens and scores of your friends and entertaining them. We have been squandering all our money. She said, no one can stop you from bringing in dozens, मीन्स दर्जनों में, मोर देन 20 फ्रेंड्स को आप घर पे बुला के इंटरटेन करती हो, इससे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। वी हैव बीन स्क्वेंडरिंग ऑल आवर मनी, हम लोगों ने अपने सारे मनी को क्या कर दिया? स्क्वेंडर मीन्स वेस्ट कर दिया। वेल, वेयर आर योर फ्रेंड्स नाउ? अब ये बताइए कि अब आपका दोस्त सब कहाँ है? Not one of them will come along and help us in our present condition. No one is coming to help us in our present condition. I don't know a better way to use it, replied Abu Hassan, कि मैं इससे बेहतर तरीका यूज़ करने का, मनी को यूज़ करने का मैं नहीं जानता हूँ। You must stop this nonsense of sharing your money with your friends. Abu Hassan says, people are like that, my dear. It is foolish of us to expect anything in return. They will crowd into our house as long as our money lasts, and when that has been spent, we won't see them again. Here Abu Hassan feels that he was foolish
to accept anything in return from his friends. He feels that his friends came to his house only he has money. When his money lasts, no any friends come to his house. Now Abu Hassan plans for a trick to get something from prince or princess. So he called his wife. Listen dear, I will pretend to be ill and you will go to the princess. She is fond of jokes. Pretend means नाटक करना, बहाना बनाना. So he asked her, his wife asks, what will I tell the princess? He says, I will pretend to be dead and you go and meet the princess and beg some money from her for the funeral. What do you say? He will pretend to be dead means वो मरने का नाटक करेगा and you go and meet the princess and beg some money from her for the funeral. तो means his wife will go to the princess and asks for some money for his funeral. His wife replied, how can I let you pretend to be dead? Look, I will pretend to be dead. Instead, I am so unhappy that I really wish to be dead. She says, वो कहती है कि मैं तुम्हें कैसे मरने का नाटक करने दे सकती हूँ. मरने का नाटक तुम्हारे बदले मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा दुखी हूँ और मैं रियली में भी मरना चाहती हूँ. Now Abu Hassan says, why? That gives me an idea. Both of us might as well as be dead if that will bring us more gold coins. I don't mind lying down first. You put on black clothes and go secretly to the princess and tell us. Now, Abu Hassan, your beloved husband, was suddenly overcome with high fever and died. अबू हसन कहता है कि क्यों ना हम दोनों मरने का नाटक करें जिससे कि हम लोग को ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स मिलेगा. और मैं सबसे पहले मरने का नाटक करने के लिए तैयार हूँ. तुम जो है ये ब्लैक क्लॉथ्स जो है, काला कपड़ा जो है मेरे पे डाल दो और तुम सेक्रेटली प्रिंसेस के पास जाना ताकि प्रिंस को नहीं पता चले. सेक्रेटली प्रिंसेस के पास जाना कि मेरा जो हस्बैंड है अबू हसन, वो उसको एकाएक बहुत ही ज़्यादा फीवर आया और मर गया. नुजहत सेज, ओके आई विल डू सो. एंड अबू हसन आस्क्स, व्हेन यू रिटर्न you lie down and pretend to be dead and I will go to the prince and tell him how my beloved wife had to fall and suddenly passed away. Well, that is settled. Let us rehearse our parts. अबू हसन कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम जो है लेट जाना और मरने का नाटक करना. मैं जो हूँ प्रिंस के पास जाऊँगा और बताऊँगा कि मेरी वाइफ एकाएक गिरी और वो मर गई. वेल दैट सेटल्ड. ये एकदम अब ओके हो गई, ये यही करना है. लेट अस रिहर्स आवर पार्ट्स. कहता है कि आओ हम लोग अपना अपना पार्ट्स को रिहर्स कर लें, प्रैक्टिस कर लें. अबू हसन एंड नुजरत रिहर्स देयर रोल्स. नाउ नुजरत अफ्रेड, बट व्हाट विल हैपन इफ वी आर फाउंड आउट. क्या होगा जब सच्चाई का पता चल जाएगा. डोंट यू फील प्राउड टू हैव अ हस्बैंड लाइक मी. अबू हसन सेड प्राउडली, डोंट यू फील प्राउड टू हैव अ हस्बैंड लाइक मी. तुमको मेरे जैसा हस्बैंड है इस बात का तुम्हें प्राउड नहीं होता है. सडनली देयर इज नॉइज ऑफ फुट स्टेप्स आउटसाइड. क्या होता है कि बाहर से कुछ आदमी के चलने की आवाज़ जो है
दोनों को सुनाई पड़ता है। ओह माई गॉड प्रोक्लेम्ड, अबू हसन प्रोक्लेम्ड, ओह माई गॉड, ओह दैट वॉज वट आई वॉज अफ्रेड ऑफ। हो गया जिस चीज़ से मैं डरती थी वही हो गया। इट्स अ मैसेंजर फ्रॉम द प्रिंस, इट्स अ मैसेंजर फ्रॉम द प्रिंस। ये प्रिंस का कोई मैसेंजर है। ही इज कमिंग हियर, वो इधर ही आ रहा है। अबू हसन मेक्स हिज वाइफ लाई डाउन एंड कवर्स हर विथ द ब्रोकेड, विद द ब्रोकेड। ब्रोकेड मीन्स एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स। He opens the door and the messenger enters. Messenger, excuse me, Abu Hassan, there has been a dispute at the palace and the prince wanted to make sure that was your wife and not you who died. मैसेंजर कहता है अबू हसन से कि पैलेस में एक डिस्प्यूट हो गया है प्रिंस और प्रिंसेस के बीच। प्रिंस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी वाइफ मरी है या कि तुम मरे हो। अबू हसन, वाई आर यू सो सस्पिशियस, तुम इतने सस्पिशन में क्यों? माई डियर वाइफ इज लाइंग ओवर देयर, मेरी वाइफ जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई है। आई डोंट वॉन्ट यू टेकिंग ऑफ दैट ब्रोकेड, मैं उस कपड़े को, उस क्लॉथ्स को हटाना नहीं चाहता हूँ। एंड फीलिंग हर कॉप्स, मैं उसके डेड बॉडी को फील करना नहीं चाहता। इफ़ यू वांट टू, यदि तुम चाहते हो तो तुम देख सकते हो। यू ओनली ऐड टू माई ग्रीफ, तुम सिर्फ मेरे दुख को बढ़ाओगे। ओह नो, आई डिडंट मीन दैट एट ऑल, द प्रिंस इज सर्टेन इट वॉज यू, सॉरी इट वॉज योर वाइफ हु डाइड, बट इन द सेम वे द प्रिंसेस इज सर्टेन इट वॉज यू हु डाइड। ओह नो, मेरा ये मतलब नहीं था। प्रिंस जो है वो निश्चिंत हैं कि तुम नहीं, तुम्हारी वाइफ मरी है, और इसी तरह प्रिंसेस भी निश्चिंत है कि तुम्हारी वाइफ नहीं, तुम मरे हो। एंड द प्रिंस हैज़ बेट 1,000 pieces of gold on this, and the princess has bet 1,100 pieces. I'm sorry for the princess, she has lost हर बेट नाउ। और वहाँ जो है प्रिंस इस बात के लिए 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड कॉइन का बेट रखे हैं प्रिंसेस के साथ, और प्रिंसेस भी इस बात के लिए 1,100 पीसेस ऑफ गोल्ड कॉइन के लिए बेट रखे हैं प्रिंस से। तो मैं अब जो है प्रिंसेस जो है वो ये बेट जो है, ये जो बेट है वो हार चुकी है। यू हैव नो नीड टू वरी एज लॉन्ग एज आई हैव गेट माई विट्स अबाउट मी। नाउ अबू हसन सेज टू हिज वाइफ, यू हैव नो नीड टू वरी, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई हैव गेट माई विट्स अबाउट मी, जब तक मेरा इंटेलिजेंस मेरे साथ है तब तक तुमको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। नाउ नुजत से, दिस इज़ टेरिबल, वी आर फिनिश्ड नाउ, व्हाट शैल वी डू नाउ, आई एम फ्राइटेंड टू डेथ। यह बहुत ही टेरिबल है। अब जो है हम लोग का कहानी ख़त्म है, अब क्या होगा? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आई एम फ्राइटेंड टू डेथ। ए नॉक एट द डोर फॉलोड बाय अ वोमेन्स नॉइज, गेट पे एक नॉक होता है, बाद में एक वोमेन की आवाज़ आती है। नाउ हु इज़ नॉकिंग, यू स्टे राइट हेयर, आई विल सी। नुजत सेज टू अबू हसन, नाउ हु इज़ नॉकिंग, कौन नॉक कर रहा है? यू स्टे राइट हियर, तुम यहाँ रुको, आई विल सी। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती है। वेल आई एम डेड, कवर मी विथ दिस सीट, वो कहता है अबू हसन की
अब मैं मर रहा हूँ, मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ। कवर मी विद दिस सीट, तुम इस सीट से मुझे कवर कर दो। मेक श्योर सी सीज दैट यू हैव बिन क्राइंग बकेट्स ऑफ टीयर्स, ऐसा मतलब लगे कि तुम बहुत रो रही हो, इस तरह का तुम नाटक करो। व्हाट एन ऑफुल थिंग इट इज़ द प्रिंसेस मेड, कौन आई थी उस समय? प्रिंसेस का जो मेड थी वो आई थी। आई एम श्योर शी इज कम टू सी इफ़ यू आर डेड, और मैं श्योर हूँ कि वो ये देखने के लिए आई है कि तुम डेड हो कि नहीं। नो आई सपोज नॉट, कम इन देयर ही इज कोल्ड एज द ग्रेव ऑलरेडी। नुजत सेज here is the body of Abu Hassan and he is cold as grave already, वो कब्र में जैसा ठंडा रहता उस तरह से वो ठंडा हो चुका है। Then Med said, Do you mind my coming in? क्या तुमको बुरा लगा मैं यहाँ आया तो? And having a look at your husband, तुम्हारे हस्बैंड को देखना और मेरा यहाँ आना क्या तुम्हें बुरा लगा? What a rogue that Ali is. He told the prince a few hours ago that it was you who died and the princess sent me to find out. I will go and tell her what I have seen. ये भगवान का क्या कारनामा है। Maid told to Nujat that his husband Abu Hassan told the prince a few hours ago, कुछ घंटे पहले प्रिंस से बोला था कि तुम जो है डाइड हो गई है, मर चुकी है, इसलिए प्रिंसेस मुझे देखने के लिए भेजी है। नाउ आई विल गो एंड टेल हर व्हाट आई हैव सीन, अब मैं जाती हूँ और जो कुछ भी मैंने देखी वही सब बता दूँगी मैं वहाँ। इफ़ इट कम्स टू दैट वी विल लीव द सिटी एंड दैट विल बी एन एंड टू ऑल आवर ट्रबल्स। नाउ अबू हसन सेज टू हिज वाइफ, इफ़ इट कम्स टू दैट, यदि ये मतलब मेरी चोरी पकड़ी जाती है, वी विल लीव द सिटी, मैं सिटी को छोड़ दूंगा और हमारे प्रॉब्लम का सारा, हमारा जो सारा प्रॉब्लम है वो सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ नो यूज़ रिलाइंग ऑन योर विट्स नाउ, यू ओनली मेक थिंग्स वर्ज, वी विल हैव टू ऑन अप, आई एम अफ्रेड देर इज़ मोर ट्रबल इन स्टोर फॉर अस। His wife said कि तुम्हारे विट्स, तुम्हारे इंटेलिजेंस पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, तुम चीज़ों को और भी ख़राब कर देते हो। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, देर इज़ मोर ट्रबल इन स्टोर फॉर अस, हमारे लिए और भी अभी ट्रबल होने वाला है। देर इज ए साउंड आउटसाइड, बाहर में कुछ आवाज़ें होती है। नुजत लुक आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देखती है। व्हाट इज़ दैट आई हियर, मैं क्या देख रही हूँ? द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड ड्रम, व्हेन किंग्स गो एनीवेयर ट्रम्पेट्स एंड ड्रम्स आर प्लेड अराउंड ही। गुड गॉड, द प्रिंस इज कमिंग हिमसेल्फ, प्रिंस जो है खुद आ रहे हैं। एंड प्रिंसेस जुबेदा इज़ विथ हिम, प्रिंसेस जुबेदा भी उनके साथ हैं। ओह वी आर फिनिश्ड, अब हम लोग ख़त्म हो गए। वी शैल बी हैंग्ड फॉर दिस बोथ ऑफ अस, हम दोनों को अब इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। हैंग्ड फॉर दिस, बी क्वाइट, अबू हसन सेज टू हिज वाइफ, बी क्वाइट, यू विल गेट नो वेयर बाई गेटिंग एक्साइटेड और फ्राइटेंड। Be quiet, you will get nowhere by getting excited or frightened.
शांत हो जाओ। ज़्यादा एक्साइटेड होके या डर के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। आई विल लीव द डोर ओपन एंड देन लाई डाउन। हम लोग जो है क्या करेंगे, डोर को ओपन छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे दरवाजे को, और दोनों जाके लेट जाएंगे। गो एंड लाई डाउन ओवर देयर एंड कवर योर सेल्फ विद द ब्रोकेड एंड प्रिटेंड टू बी डेड। आई शेल डू द सेम, बोथ ऑफ अस विल प्रिटेंड टू बी डेड। तुम वहाँ जाके ब्रोकेड से अपने आप को कवर कर लो और मैं यहाँ लेट जाते हैं और दोनों ही मरने का नाटक करते हैं। प्रिंस, प्रिंसेस जुबैदा एंड मैसेंजर, द मेड एंड अदर्स एंटर द रूम। ये सब जो प्रिंस, प्रिंसेस जुबैदा एंड मैसेंजर्स, सॉरी द मैसेंजर, द मेड एंड अदर एंटर्स द रूम। नुजत, इट इज़ मी द प्रिंसेस, वेयर आर यू। नुजत, वो जो प्रिंसेस है वो रूम घर में एंटर होने के बाद बोलती है, नुजत, इट इज़ मी, मैं हूँ, द प्रिंसेस, वेयर आर यू। एंड प्रिंस ऑल्सो से, ओ लुक, देर आर टू बॉडीज हेयर, बोथ ऑफ देम आर डेड। अबू हसन, वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। पुअर नुजत, आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेड। प्रिंसेस सेज कि बेचारी नुजत जो है वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देख के उसका हार्ट अटैक हो गया और मर गई वो। नाउ प्रिंस सेज, हाउ कैन यू से दैट व्हेन इट वाज द वाइफ दैट डाइड फर्स्ट। कि तुम ये कैसे कर सकती हो कि दोनों में वाइफ जो है पहले मरी है। It was poor Abu Hassan's heart that broke at seeing his wife dead. ये मतलब बेचारा अबू हसन है जो अपनी वाइफ को मरी हुई देख के उसका हार्ट ब्रेक हो गया और वो मर गया। What a stupid thing to say, the wife didn't die first. Now princess say, What a stupid thing you say. कितना stupid बात बोले। The wife didn't die first. वाइफ पहले नहीं मरी है। It was Abu who died first. अबू हसन जो है वो पहले मरा है। If you don't know what you are talking about, I tell you, your man was lying. My maid found Abu's wife tearing her hair, cut in grief about Abu died first. प्रिंसेस सेज कि आपका आदमी जो था वो झूठ बोल रहा है। मेरी जो मेड है वो अबू की वाइफ मीन्स नुजत को रोते, बहुत दुख से रोते हुए देखी है। अबू डाइड फर्स्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। Well, I don't mind giving away 1,500 pieces of gold to the man who proves you wrong. Princess Zubeda said कि जो आपको गलत साबित करेगा मैं उसे 1,500 गोल्ड कॉइन्स दूंगी। I will once again कि प्रिंस said I will give 1,000 pieces of gold to anyone who can prove which one them died first. मैं जो ये प्रूव करेगा कौन पहले मरा है उसको मैं 1,000 गोल्ड कॉइन दूंगा। नाउ सडनली अबू हसन जंप्स अप। अब क्या होता है कि अबू हसन जो मरने का नाटक कर रहा था वो खड़ा हो जाता है। इट वॉज मी दैट डाइड फर्स्ट योर मैजेस्टी, मे गॉड सेव अस, आर यू अ घोस्ट। वो खड़ा हो जाता है, जैसे लेटा हुआ मरने का नाटक कर रहा है, लेटा हुआ वो खड़ा होकर कहता है, इट वॉज मी दैट डाइड फर्स्ट योर मैजेस्टी, मैं हूँ जो पहले मरा था। प्रिंस, मे गॉड सेव अस, भगवान मुझे बचाए, आर यू अ घोस्ट, क्या तुम एक घोस्ट हो। वी आरंट घोस्ट। नाउ बोथ ऑफ देम हु अबू हसन एंड हिज वाइफ सेज वी आरंट घोस्ट,
योर हाइनेस एंड नाइदर ऑफ अस इज़ डेड, हम दोनों में से कोई नहीं मरा है। लुक दैट वोमेन इज़ अवेक टू, प्रिंस कहता है कि देखो वो औरत भी जग गई है। नाउ अबू हसन एक्सप्लेन्स, अबू हसन टोल्ड द होल मैटर। इट वॉज आवर पोवर्टी एंड आवर माइजरी दैट ड्रोव अस टू प्ले दिस गेम, मेरी मतलब गरीबी है और जो कंडीशन है, बुरा कंडीशन है जिस वजह से मुझे ये गेम करना पड़ा। आई डोंट माइंड योर थ्रोइंग मी इनटू प्रिजन फॉर दिस, यदि आप मुझे जेल में भी डाल देते हैं तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, बट पार्डन माई वाइफ, लेकिन मेरी वाइफ को क्षमा कर दीजिए। लेट हर गो फ्री, उसको फ्री छोड़ दीजिए। सी इज इनोसेंट, वो इनोसेंट है। इट वॉज जस्ट अ गेम। नाउ नुजत सेज, नो नो योर हाइनेस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पनिश मी फॉर दिस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे पनिश कीजिए। पार्डन माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को माफ़ कर दीजिए। ही नेवर मीन्ट एनी हार्म, उन्होंने कभी कोई हार्म नहीं किया है। नाउ प्रिंसेस सेज, सो एम आई, लेट अस गिव अबू एंड हिज वाइफ ऑल द गोल्ड यू एंड आई वैगर्ड, वैगर्ड मीन्स बेट, वैगर्ड मीन्स बेट। यस यू विल हैव इट, तुम लोग को मिलेगा। मीन्स वो प्रिंसेस कहती है कि हमने, मीन्स प्रिंस और प्रिंसेस जो भी गोल्ड कॉइन्स का वेगर्ड किया था, वेट लगाया था, वो सारा उसको देने के लिए कहती है। हाउ कैन आई पनिश आइदर ऑफ यू, नाउ प्रिंस सेज, मैं तुम दोनों में से किसी को भी कैसे पनिश कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड यू आर बोथ अलाइव, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों जीवित हो, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों जीवित हो। थैंक यू वेरी मच योर मैजेस्टी, वो दोनों प्रिंस और प्रिंसेस को धन्यवाद देता है। यस यू विल हैव इट, यस तुम लोग को मिलेगा गोल्ड कॉइन्स, जो हम लोगों ने वैगर्ड किया है, बेट किया है, उतना गोल्ड कॉइन तुम दोनों को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव read the story. Once again I am suggesting you to go through the chapter properly after watching the video, and the exercise of this chapter will be uploaded soon in the Google Drive link which you have been provided. Complete the exercise in rough copy and submit to the school. Thanks.